we talk about the reactivity towards the oxygen. In this we have shown here, plus higher oxidation state shows more form a more strong acid than the lower oxidation state. So we can say here higher oxidation state show more acidic nature. So +5 oxidation state is more acidic than the +3 oxidation state. Now we talk about the reactivity in a group. Top to bottom, or when we are moving down the group, acidic nature decreases because down the group metallic character increases. मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं और डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज. अब मेटल की व्हाट इज़ द टेंडेंसी ऑफ मेटल? मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन. ओके, तो मेटल व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन तो एसिडिक नेचर जो होती है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो रही है. और एसिडिक नेचर क्या होता है? टू गेन इलेक्ट्रॉन. सो बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, these are basic in nature and means when they dissolve in water they form bases and they also form salts when treated with acid. That's why we can say here that down the group acidic character are decreases. Okay, now talk about the reactivity towards halogen. Halogen के साथ में हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं. इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ हैलाइड, EX3 एंड EX5. ओके, हियर N will not form EX5. Why it not form EX5? Because due to the absence of d orbital. d orbital ही नहीं होता. It can not explain this covalency towards +5. So unavailability of DNF orbital, it cannot form EX5 compounds. Okay, and pentahalides first नीचे it will not form EX5. Number 2, due to absence of DNF orbitals. Now second reason is that pentahalides are more covalent than trihalides. ट्राईहेलाइड की कंपैरिजन में जो pentahalides हैं they are more covalent. What is the reason? Reason behind is that in the case of pentahalide it can expand its covalency due to the d orbital and can form +5 bond. देखिए पेंटाहेलाइड में क्या है कि ये अपनी कोवेलेंसी को जो है वो एक्सपेंड कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल, है ना. और ये क्या करता है, इसके पास कितने होते हैं, इसके पास जैसे फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोजन की बात करें तो क्या होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3. अब d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो जब होता ही नहीं है तो ये कैसे करेगा. चलिए अब कोई और कंपाउंड बनाए कि मतलब PCl3 बनाते हैं, PCl3. तो ये इसके पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फॉस्फोरस की +3 है. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या है, इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल. d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से पर्टिकुलर इस कंपाउंड में, फॉस्फोरस में होता है, ये PCl5 में बनाएगा क्योंकि इसमें वो d ऑर्बिटल का यूज़ कर रहा है, बट इसमें वो यूज़ नहीं कर पाएगा. सो इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स pentahalides are more covalent than the trihalides. Yeah, here we can say the exceptions are also there. NF3 except NF3 all trihalides of nitrogen are unstable. केवल NF3 ही जो है वो स्टेबल है, बाकी जितनी भी ट्राईहेलाइड हैं they all are unstable. Trihalides except BiF3 ऑल आर कोवेलेंट. ये क्या है, आयोनिक इन नेचर है. बाकी जितने भी आपके ट्राईहेलाइड बनते हैं
वो सारे के सारे जो है वो कोवेलेंट नेचर है, बट ये क्या बनाता है, आयनिक है। क्यों आयनिक है? क्योंकि साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा है तो क्या है, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या ये हैलोजन की टेंडेंसी होती है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट विल attract electron towards itself, so it form a ionic bond. Now we talk about the last topic, that is the reactivity with metals. Reactivity with metals. Reactivity with metals, it form a binary compound. क्या बनाता है ये? Binary compound. Binary compound किसे बोलते हैं? Binary compound means two elements when form a compound is called binary compound. Here one element is the metal and the other is the 15 group element. Metal has the property to lose electron, and starting elements of this group element are non metal. देखिए metal की क्या प्रॉपर्टी होती है? metal की प्रॉपर्टी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि मैं 15 ग्रुप एलिमेंट की सीरीज़ लिखूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, तो ये क्या होता है? नॉन मेटल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? मेटेलॉइड, नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटेलॉइड्स हैं, और ये क्या है? आपका मेटल है। तो क्या है कि जैसे जैसे मेटल की टेंडेंसी होती है लूज़ करने की, और इनकी क्या होती है? सारे के सारे नॉन मेटल है या मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जिस वजह से क्या है, दे गेट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या होता है? दे शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कि Ca3N2 एंड Ca3P2, ये बनाता है ट्राई कैल्शियम नाइट्राइट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फाइड, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो नाइट्रोजन की -3 होती है दोनों केसेस में, और ये क्या बनाता है? ये आपका ट्राई कैल्शियम डाइनाइट्रेट, ट्राई कैल्शियम डाइफॉस्फाइड कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इज दैट वाई BP ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ PH3 इज लोअर देन NH3। हमने पहले भी पढ़ा था PH3 का जो BP है वो NH3 से लोअर क्यों है? क्योंकि अमोनिया में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने से बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, और मोर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या है? इसका जो BP है वो ज़्यादा हायर है और इसका जो है वो लो है। फिर क्वेश्चन है हमारा, वाई BiH3 इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है इन ग्रुप 15 एलिमेंट? क्यों? क्योंकि Bi जो है वो इसका साइज़ जो है वो लार्ज है, और लार्ज साइज होने की वजह से क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? इसकी लो है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होने की वजह से क्या हुआ? इट ईजिली प्रोवाइड हाइड्रोजन, अपने आप से ब्रेक हो जाएगा तो आसानी से हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा। हाइड्रोजन को लूज़ कर देगा तो क्या होगा? इट कैन रिड्यूस, so it is a strongest reducing agent.